गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ। ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ know that there are near about 6 to 7 rules for doing ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਸ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Cl ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰੋ, Br ਤੋਂ ਬ੍ਰੋਮੋ, NO2 ਤੋਂ ਨਾਈਟਰੋ, NH2 ਐਮੀਨੋ, CH3 ਮਿਥਾਈਲ, C2H5 ਇਥਾਈਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ICSE ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ CBSE ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। CBSE ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ ਵੈਸੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਡ ਰੂਟ। ਵਰਡ ਰੂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਥ। ਕਾਰਬਨ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਥ, ਕਾਰਬਨ 3 ਪ੍ਰੋਪ, ਕਾਰਬਨ 4 ਅਗਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਊਟ, ਕਾਰਬਨ 5 ਪੈਂਟ, ਕਾਰਬਨ 6 ਹੈਕਸ, 7 ਤੋਂ ਹੈਪਟ, 8 ਤੋਂ ਔਕਟ, 9 ਤੋਂ ਨੌਨ ਐਂਡ C10 ਤੋਂ ਡੈਕ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 6 to 7 ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਆ ਜਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 8 ਤੱਕ, ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਕਟ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ 10 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਰੂਟ, ਐਂਡ ਦ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਫਿਕਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਫਿਕਸ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਏਨ। ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਈਨ। ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਫਿਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਗਸ। ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਿੰਗਸ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ COH, COOH, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ COH ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ C OH। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਓ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ COH, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ C OH। ਐਂਡ ਆਯੂਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਓਇਕ ਐਸਿਡ। ਐਂਡ ਫॉर द ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ CHO, ਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ C OH। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CH2OH ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਓਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਓਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ COCH3CH3। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਯੂਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਯੂਪੈਕ ਨੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ। ਪਹਿਲੇ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੇਨ ਹੈਗੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਔਨ ਦ ਅਦਰ हैंड मेरे को एक मैं इस तरह चेन बनाती कार्बन दी। सो क्वेश्चन राइज करता है कि ये दोनों चेन के विचों मैं नंबरिंग किनू दूंगा एंड लॉन्गेस्ट चेन दोनों किस बनेगी। एक पॉइंट याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कार्बन की चेन हैगी है ना, वो असी लॉन्गेस्ट बनानी होंगी है। सब तो जो पहला रूल है आयु पे नेमिंग करने वास्ते। सो मैं लॉन्गेस्ट चेन जी बनाऊंगा, ऊपर मैं देख रहा लॉन्गेस्ट चेन मेरी की बनती पई है 1 2 3 4 5 कार्बन की। बट जो सेकंड केस है चेन की बनती है लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 की मेरी बनती पई है लॉन्गेस्ट चेन। सो ये पॉइंट याद रखना है कि असी करना कि पहले रूल के हिसाब से जो एक लॉन्गेस्ट चेन असी बनानी है। इस तो बाद जो एक सैकेंड रूल साडे कोल आंदा है, the branch chain are considered to be substituents and their positions are indicated by the numbers of the carbon atoms to which they are attached। हुन सेकंड रूल की कहता है, अगर मेरे को एक कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मेरे को 5 कार्बन चेन है। अगर मैं किसी कार्बन के ऊपर CH3 लिख दूंगा, CH3 तो 10 की होनी, वी हैव टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, नॉट इन कंडेंस फॉर्म। हुन कंडेंस फॉर्म कंडेंस फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म का डिफरेंस की है, ये है कि एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर मैं कंडेंस फॉर्म लिखना होगा किस तरह लिखूंगा, C के ऊपर CH3,
दिस इज अ कंडेंस फॉर्म। अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हो तो मैं हाइड्रोजन प्रॉपरली ओपन करके लिखूंगा, सी दे ऊपर एच, हर एक साइड एच एच लिखूंगा मैं। सो ये अपना हैगा पहला ਜਿਹੜਾ अपना सैकेंड रूल हैगा। पहला रूल की ਸੀਗਾ कि ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗेस्ट ਚੇਨ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ। ਸੈਕੰਡ रूल ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ give the smallest number to the substituent attached in the chain। ठीक है, सो सबस्टिट्यूएंट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਥਾइल। ਸੈਕੰਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਿਥਾइल ग्रुप लगा है 1 2 3 4 5 ਮਿਥਾइल ग्रुप जो लगा है। थर्ड ਸਾਡੇ ਕੋਲ रूल ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਥਾइल ग्रुप ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਮਿਥਾइल ग्रुप ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ਸੋ ਮਿਥाइल ग्रुप ਨੂੰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਟੂ ਦ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਟੈਚ ਇਨ ਦ ਚੇਨ। ਸੋ ਜੋ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ रूल नंबर 3। इस तो बाद जो अगला रूल साडा की कहता है, अगर कोई किंग लगा होया, किंग का मतलब तुमने दस्या सीगा स्टार्टिंग तुमने दस्या सी फॉर्मूले दे विच, किंग का मतलब इत्थे की हैगा कोई फंक्शन ग्रुप लगा होया। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH 2 CH CH3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ क्वेश्चन है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ फ्रॉम द राइट हैंड साइड जो मेरा राइट हैंड साइड है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ OH ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ਮੇਰੇ ਕੋਲ CH3 ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ 1 2 3 4 5। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ठीक है। सो इस साइड तो मैं नंबरिंग करूंगा। अगर मैं बाई चांस नंबरिंग साइड तो करता तो मेरा क्वेश्चन हो सकता है गलत, क्योंकि जिस साइड पे कोई किंग लगा हो असी उस साइड तो ही नंबरिंग शुरू करनी है, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन दो फंक्शन ग्रुप लगे हो भी सेम लगे हो तो असी फिर किसी साइड तो भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, देख के कि किस साइड तो वो फंक्शन ग्रुप साइड को नजदीक पैंदा है, वो भी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सो सबसे पहले नोट बेटा तुम नोट कर लो कि पहला साडा रूल की कहता सीगा वी हैव टू मेक द लॉन्गेस्ट चेन। सैकंड रूल कहता है कि सबस्टिट्यूएंट हैगा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक छोटा नंबर चाहिए, वड्डा नंबर असी नहीं देना हैगा। एंड जो नज़दीक मतलब हैगा सबस्टिट्यूएंट असी नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है। सो ये पॉइंट जिहड़े हैगे उन्होंने नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी दे विच। नैक्सट रूल की कहता हैगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चेन हैगी है, इस साइड साडे को बनया हुआ BR एंड ऑन द अदर हैंड वी आर गिवन एज CL। सो इस केस दे विच जिस क्वेश्चन दे विच दो अलग अलग सिस्टम दिते हुए हैं, सो असी नंबरिंग किस साइड तो शुरू करांगे। हुण इस क्वेश्चन दे विच कोई सबस्टिट्यूएंट ओ नहीं दिता होया फंक्शन ग्रुप, इहदे विच सिर्फ सबस्टिट्यूएंट ही दिता होया ब्रोमो एंड क्लोरो। इस क्वेश्चन दे विच असी नंबरिंग कित्थों शुरू करांगे, जिस साइड तो साडा जो अल्फाबेट ऑर्डर वाइज जो साडा सबस्टिट्यूएंट आंदा हैगा। हुण पहले B आंदा है पहले C आंदा है, ऑब्वियसली पहले B आंदा हैगा दैट इज ब्रोमो, क्लोरो बाद विच आंदा हैगा। सो असी नंबरिंग कित्थों शुरू करांगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 2 3 4 5। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ शुरू करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। क्यों शुरू की लेफ्ट हैंड साइड तो, क्योंकि जो BR है सबस्टिट्यूएंट वो की हैगा अल्फाबेट ऑर्डर वाइज, B जो हैगा पहले आंदा है, CL बाद में आंदा है। अगला जो सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो ज्यादातर क्वेश्चन से सारा यूज होता है, वो रूल की कहता है सपोज करो मैं CL हटाता इधरों एंड जो सेकंड नंबर कार्बन सीगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं अप्लाई करता एक होर BR, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं एक होर BR लिखकर। सो मैंने एक H भी हटाना पैना क्योंकि कार्बन जो वैलेंसी है कंप्लीट करनी है 4 दी। सो तो मैं H हटाता है BR दो सबस्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। नंबरिंग मैं इत्थों शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 एज इट इज। बट हुण कार्बन जो 2 हैगा ਉਹਦੇ ऊपर भी BR है थले भी BR लगा हुआ है। हुण इस क्वेश्चन से नंबरिंग कितना शुरू करांगे, नंबरिंग असीं इस साइड तो देनी है बट 2 BR करके असीं यूज करांगे डाई। फॉर एग्जांपल इत्थे मैं लिख दिंदा तुहानूं सामने 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ BR ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ BR। सो मैं की लिखूंगा 2,2 डाई ब्रोमो 1 2 3 4 5 5 वाला ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ वर्ड रूट ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर 5 कार्बन ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ यूज करते हैं पेंट, ਅਸੀਂ यूज करते हैं पेंट एंड हर एक कार्बन ਦੇ ਵਿੱਚ एक सिंगल बॉन्ड है। सो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ एन पेंटेन। सो आंसर बन गया 2,2 डाई ब्रोमो
ਪੈਂਟੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। चार कार्बन बनाते मतलब ब्यूट, पहले एंड दूसरे कार्बन दे विच मैं बनाता डबल बॉन्ड। हूँ मैं हाइड्रोजन पूरे करने हैं 1 2 3 मतलब इन्हें एक हाइड्रोजन लगेगा। यू हैव टू राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं बार बार कहूँगा तुम मैं कि कंडेंस फॉर्म के पेपर बिल्कुल नहीं लिखना है, खास करके जो ICSE स्टूडेंट्स है 10th क्लास के बिल्कुल लिखना। एंड CBSE भी मैं सेम ही गल कहूँगा। वैसे इस साल थोड़ा नोमनक्लेचर सिलेबस के नहीं है, बट तुम भी ये जो टॉपिक है जरूर कर जियो। हूँ ये जो कार्बन है फर्स्ट वन ये दो बॉन्ड लगे मतलब इन्हें दो हाइड्रोजन लगेंगे। जो आ कार्बन है 1 2 3 4 एंड द लास्ट वन 1 2 3। हाँ जी बेटा नोट कर लिया जी। हूँ बिल्कुल ध्यान देखियो जी, इस क्वेश्चन के डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब जिस साइड तो डबल बॉन्ड आता है असं उत्थे शुरू करनी, क्योंकि इस क्वेश्चन के कोई सबस्टेंट लगा नहीं है, ना ही सबस्टेंट लगा हुआ ना ही कोई किंग लगा हुआ है। किंग का मतलब फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोनिक, एल्डिहाइड, अल्कोहल कुछ नहीं लगा है। सो ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ 1 2 3 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਡ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਊਟ ਅਗਰ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਂਟ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਊਟ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ 1 ਐਂਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਾਰਬਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਊਟ 1 इन। इन क्यों लिखा मैं इतने बिकॉज इतने की है डबल बॉन्ड। स्टार्टिंग देखो तो मैं क्या सीगा प्राइमरी सफिक्स दे विच अगर कार्बन कार्बन दे विच सिंगल बॉन्ड होवे ते एन। दोबारा रिपीट करूंगा, कार्बन कार्बन च सिंगल बॉन्ड होवे ते एन, कार्बन कार्बन दे विच अगर डबल बॉन्ड होवे ते इन जिस तरह ये हैगा। एंड अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होवे तो आइन। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रिपल बॉन्ड बनया होंदा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होंदा तो मैं 1 2 3 मतलब हाइड्रोजन लिखने की लोड़ नहीं सी मैनू। ठीक है, एंड इस साइड भी 1 2 3 4 मतलब कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आना सीगा। सो इसका आंसर की बनना सीगा ब्यूट 1 आयन। इतने हुण आयन क्यों आया बिकॉज देयर इज ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। होप यू ऑल हैव क्लियर दिस कंसेप्ट। एक होर आप एग्जाम्पल ले लेंगे ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का। फॉर एग्जाम्पल मैं हुण इधर मैं 5 कार्बन ले लेना 1 2 3 4। एक एग्जाम्पल कोई और ले लेना 1 2 3 4 5। हूँ इस केस मैं की करता पाया 1 2 3 2 एंड 3 दे विच मैं डबल बॉन्ड लगाता। ठीक है, हूँ डबल बॉन्ड तो लगाता, हूँ हाइड्रोजन भी पूरे करने हैं मैं। सो मैं देखूंगा हाइड्रोजन किस तरह पूरे करूंगा, क्योंकि मैंने पता है कि जो कार्बन है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, मतलब कार्बन जो है 4 बॉन्ड पे कंप्लीट करता ही अपने 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगाता है जो ऊपर। इस कार्बन से एक बॉन्ड लगा है मतलब हाइड्रोजन कितने लगेंगे 3 लगाते। उस तो बाद इस कार्बन में टोटल कितने बॉन्ड लगेंगे 1 2 3 है बॉन्ड मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा। हो गया कंप्लीट हो गया, कार्बन की डेंसिटी कंप्लीट होगी। इस कार्बन देखो 1 2 एक ऊपर एक नीचे, इस कार्बन एक ऊपर एक इधर इधर 3 कार्बन लगे हाइड्रोजन लगे कार्बन दे। हुण असीं करदे हां नेमिंग। नेमिंग किस साइड शुरू करेंगे, जिस साइड तो डबल बॉन्ड नेड़े है। वो नेड़े किस साइड तो इस साइड तो है। सो 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आएगा 5 कार्बन है। 5 कार्बन मतलब वर्ड रूट के साथ पेंट है, पेंट 2 इन। हुण इत्थे 2 क्यों आया मैं तो दस्सिया सीगा 2 या 3 दे विचों छोटा किहड़ा हैगा 2 वाला है। पिछले क्वेश्चन में कीता सीगा 1 ते 2 दे विच छोटा किहड़ा हैगा 1 वाला। सो पिछले आंसर क्या सीगा ब्यूट 1 इन या ब्यूट 1 आइन या ट्रिपल बॉन्ड हुंदा सीगा। पर इस केस दे विच 2 एंड 3 दे विचों छोटा कार्बन किहड़ा हैगा 2 वाला। सो पेंट 2 इन। अगर फॉर एग्जांपल 3 ते 4 डबल बॉन्ड हुंदा फिर इत्थे आंसर आना सीगा पेंट 3 इन। हुण अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूंगा, इत्थे मैं डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लिख दूंगा। ठीक है, हुण देखो 1 2 3 4 मतलब बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब हाइड्रोजन ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। सो
इस केस ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਪੈਂਟ टू आयन, पेंट टू आयन, कार्बन नंबर 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड हैगा, इसलिए पेंट टू आयन। अगर डबल बॉन्ड होते पेंट टू इन, जो नहीं मैं तेन करा के हटे। सो इसी के बेटा कुछ सारे इंपॉर्टेंट रूल्स टू डू आईयूपैक नेमिंग, कुछ क्वेश्चन ਅਸੀਂ ट्राई करते हैं। होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ टॉपिक समझ आया हैगा। दोबारा ये वीडियो पिछे करके देख लियो एक बार प्रॉपरली, नोट्स अपने कॉपी 'ਚ बना लियो। सो कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड एक और कंसैप्ट है छोटा जिहा, क्वेश्चन से कुछ जिस जिदा एक क्वेश्चन सारे को दो ही फंक्शन ग्रुप हो जो कि बिल्कुल सेम हो, वो क्वेश्चन आप किस तरह करेंगे आज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2CHO, बेटा मैं लिखूंगा कंडेंस फॉर्म दे, बट इन द एग्जाम यू हैव टू राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं कंडेंस फॉर्म च लिखना है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखियो, पर तुसी प्रॉपरली हाइड्रोजन प्रॉपर ओपन करके लिखना। एंड उस तो अगे सीगा तुहाडा CH3 CH2 CHO, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन सीगा, मतलब एक ही क्वेश्चन दे विच दो फंक्शन ग्रुप है, वो भी बिल्कुल सेम है। किसी साइड तो नंबरिंग शुरू कर दो, इस साइड तो नंबरिंग शुरू करूंगा तभी पहले नंबर मिलेगा, इस साइड से शुरू करूंगा तभी पहले नंबर मिलेगा। सो 1 2 3 4 5। हुण असीं इहनूं आईयूपैक नेमिंग किस तरह देवांगे? ना ही इस क्वेश्चन कोई डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन दे विच, मैं की बोलिया, ना ही इस क्वेश्चन डबल बॉन्ड है कार्बन ते कार्बन दे विच, ना ही इस क्वेश्चन विच कोई सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सिर्फ तो सिर्फ दो फंक्शन लगे हुए, किहड़े CHO एंड CHO, जो कि दोनों हो सेम ही है। नंबरिंग में शुरू करती है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब की है पेंटेन। 1 2 3 4 5। हुण पहले कार्बन दे नाल एंड पंजवें कार्बन दे नाल सर्कल की लगा हुआ है CHO लगा हुआ है। सो मैं तो लिखूंगा पेंटेन 1,5 डाई अल। इस क्वेश्चन एक चीज का बिल्कुल ध्यान पैना है कि अगर मेरे को दो फंक्शन ग्रुप लगे जो कि बिल्कुल सेम है एंड मैं लिखता पे पेंटेन 1,5 डाई अल, जो मैं लिखता ना डाई अल, तो असी इथों ई नू कैंसल नहीं करना। ये बिल्कुल ध्यान दियो। हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन इस तो बाद करवाऊंगा जिस केस दे विच मैं फंक्शन ग्रुप लैके आऊँगा क्वेश्चन दे विच, एंड उस केस दे विच असी ई नू रिड्यूस करांगे, ई नू इत्थे नहीं लिखांगे। बट इस क्वेश्चन में आपां ई नू इत्थे क्यों लिखिया? क्योंकि इत्थे की आंदा पिया दो फंक्शन ग्रुप बनते पे एंड इस जगह पे लिख हो रहा है डाई। बट अगर इन द केस इतने डाई नहीं होंदा फिर आप ई इधरों कट देना सीगा, डील कर देना सी ई इधरों, ठीक है जी। हुण तुहानूं क्वेश्चन करके दिखाना है किस तरह आप करना है। फॉर एग्जांपल सर कोई क्वेश्चन होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ਉਹਨਾਂ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ एक्सपेंडेड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ देख के पहचान जाओगे ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, अगर C डबल बॉन्ड OH ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ? इट इज अ किंग दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो ये तो देख के ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया C डबल बॉन्ड OH इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर ਇਹਦੀ जगह ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ C डबल बॉन्ड OH, ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ? एल्डिहाइड ग्रुप। सो बिल्कुल बेटा कंफ्यूज ना हुई हो। दो तरह के तरीके ने क्वेश्चन दिते जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन्हें दिता जा सकता है C डबल बॉन्ड OH या फिर COOH, एंड सिमिलरली फॉर द एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO, ठीक है जी। इसकी पहचान हैगी है, याद रखियो बेटा, C डबल बॉन्ड OH या CHO, C डबल बॉन्ड OH COH। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 2 ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? वर्ड रूट, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन 'ਚ कोई प्रीफिक्स तो है ही नहीं, कोई सबस्टिट्यूएंट है ही नहीं, सो ਆਪਾਂ शुरू कितों करांगे? वर्ड रूट तो। फॉर्मूले हिसाब ਦੇ ਨਾਲ। फॉर्मूला कितना सीगा?
सब तो पहला प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, उस तो बाद प्राइमरी सफिक्स एंड द लास्ट वन इज अवर सेकेंडरी सफिक्स जिन्होंने कहते हैं किंग्स। ठीक है, इस क्वेश्चन से सेकेंडरी सफिक्स भी हैगा, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइमरी सफिक्स भी है ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ वर्ड रूट भी हैगा, बट इस क्वेश्चन में प्रीफिक्स नहीं है। सो ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ वर्ड रूट ਤੋਂ। वर्ड रूट मतलब दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब इथ। सो इथ लिख लिया एंड हर एक कार्बन ਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल बॉन्ड है, मतलब इन आ गया। ठीक है बेटा, सिंगल बॉन्ड इन आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि पिछले क्वेश्चन ਵਿੱਚ डाई ਸੀਗਾ 1,5 डाई अल, बस बट इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक ही फंक्शन लगा हुआ है, ओनली वन एंड वन, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। सो आंसर क्या आएगा, इथेन इथेनिक ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इस ओ ने, इस वोवल ने इस ई ਨੂੰ खत्म करता। अगर ਤੁਸੀਂ पेपर 'ਚ लिख के आओगे इथेन ओइक एसिड मतलब ਤੁਸੀਂ ई ਨੂੰ कैंसिल नहीं किया, ਤੁਹਾਡਾ हो जाएगा क्वेश्चन गलत। सो बिल्कुल ध्यान रखियो, इथेनोइक एसिड ਵਿੱਚ ਉਸੇ ई ਨੂੰ कर देना कैंसिल, बिकॉज दो वोवल कभी इकट्ठे नहीं ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। सो ई ਨੂੰ कर देना आपसी कैंसिल। ओइक एसिड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ओइक एसिड इथेनोइक एसिड, क्योंकि प्रॉपर्ली फॉर्मूला बनाना ਸੀਗਾ। ठीक है ना, बट पिछले क्वेश्चन की होया ਸੀਗਾ दो फंक्शन ग्रुप आगे ਸੀਗੇ जो कि बिल्कुल सेम ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ पेंटेन 1,5 डाइअल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ क्वेश्चंस ਹੋਰ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईयूपैक ਦੇ। होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आईयूपैक नेमिंग समझ आ गई होनी। अगर किसी को कोई डाउट लगता हैगा तो एक बार दोबारा वीडियो रिकॉल करके वो देख सकते हैं कि आईयूपैक नेमिंग किस तरह करनी है। ਅਸੀਂ ਹੋਰ क्वेश्चन लेने हैं। CH3, बिल्कुल ध्यान बेटा करियो, मैं हूं एक्सपेंडेड फॉर्म च लिख रहे हैं क्वेश्चन। सेकंड कार्बन के थले भी CH3, इस कार्बन के नाल भी 3 हाइड्रोजन एंड इस कार्बन के नाल भी 3 हाइड्रोजन। द फर्स्ट रूल इज अवर वी हैव टू मेक द लॉन्गेस्ट चेन। देखो लॉन्गेस्ट चेन कितनी बनती हुई है 1 2 3 कार्बन दे। जो सेकंड कार्बन है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ CH3 ग्रुप हैगा एंड ਉਹਦੇ नीचे भी CH3 ग्रुप है। सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ। ठीक है, सो 2,2 CH3 ग्रुप हैगा मतलब कि डाई मिथाइल। उस तो बाद ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ 2,2 डाई मिथाइल। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾर्ट आ गया, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦਾ ਪਾर्ट आ गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾर्ट ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, वर्ड रूट ਦਾ पार्ट। वर्ड रूट पार्ट ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन ਕਿਹੜੇ है 1 2 3। इस पूरी चेन में सिर्फ 3 कार्बन चेन में आ रहे हैं। सो ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 कार्बन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪ एंड हर एक सिंगल बॉन्ड ਤੇ इन। सो आंसर बन गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सो बेटा क्वेश्चन नोट कर लियो। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस रूल के हिसाब ना करने हैं। फॉर्मूला अगर याद रहेगा प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, पहचान होगी प्रॉपर फंक्शन ग्रुप की, पता होएगा किस फंक्शन ग्रुप तो बाद असी की चीज़ लिखनी है। अगर अल्कोहलिक है तो लास्ट पर लिखना है ओल, अगर कीटोनिक ग्रुप है तो लास्ट पर लिखना है ओन, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो असी लास्ट लिखना है ओइक एसिड एंड अगर एल्डिहाइड ग्रुप है लास्ट लिखना है अल। सो अगर सब कुछ तुम्हें पता होएगा तो असी आराम देना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो।